Hello everyone, today we are going to discuss about the robotics. Robotics which is derived from the word robot. Robot is nothing but a machine which is used for automation purpose and automation in the field of industry, home automation and these are used for different purposes. So there are several types of robots: edge detector, then obstacle detector, and of course line follower, which we are going to discuss today, how it is prepared and components required. So let's begin. So first of all, let us know what are the components required in this project. Okay, so we should have two L-shaped gear motor. These are 12 volt DC motor, right? Then two IR sensors module. Okay, let us explain how IR sensor module work. See, in IR sensor module we have a transmitting LED and receiving LED, right? So how it works, how this module works? For explaining this IR sensor module, let us consider this diagram. In first case, there is a black screen placed in front of IR sensor, right? So if the LED transmitting LED transmit the signal, right? It transmits the signal, and if there is a black screen, then no signal will come back from the black screen. All the signals gets absorbed. In that case, the transmitting LED gets zero signal. In that case, there is a LED here which shows the response of the transmitting LED, whether it gets backlight or not. Okay, so in first case, if black screen is placed right in front of the IR sensor module, then this receiving LED will not get the signal, and the voltage, output voltage in this pin, there you can see that there are three pins here: output pin, ground pin, and VCC, means positive voltage pin, right? So output pin responds 0. Okay, it will not get any response as there is a black screen. Now in second case, if there is a white screen placed in front of the IR module, then it senses white screen, and white screen get just deviate, or you can say reflect the signal back to the transmitting back to the receiving end. Okay, in that case, then there is the LED response in this case, and the output signals from this pin is goes to the IC. Okay, so how this works, let me demonstrate. There is a black screen and there is a white screen, right? So this is a line follower robot. Let me explain how this is a IR sensor module, how it works. When we place a black screen in front of the these LEDs, you can say that when black screen is there, there is no response in the IR sensor module, right? When we place white screen in front of the IR sensor module, then you can say that there is a LED which glows and responds. It gives signal to the ICs. This is the IC. I will explain this IC also in future. Okay. So then IC gets signal, give input to the motor to start. You can see here, right? Okay. No response. Here motor starts moving forward. Okay, so this is the working of the IR sensor module.
Now for this purpose we require a 16 pin ULN 2003 IC. You can see 16 pin. Let me explain something about this IC. there are 16 पिन, ठीक है। तो 16 पिन जो हैं उसमें नंबरिंग कैसे करते हैं, कैसे जानेंगे कौन सा पिन पहला है, कौन सा पिन दूसरा है, राइट, एंड सो ऑन अप टू 16 नंबर। तो उसके लिए एक ट्रिक ये है कि हर आईसी में एक कट होता है, उस कट को आपको लेफ्ट साइड में रखना होता है, राइट। इसके बाद जो फर्स्ट पिन होती है आपकी, जैसे कि आप इस आईसी में देख रहे हैं, यहाँ पे आपके साइड से ये लेफ्ट होगा, राइट। उसके बाद नीचे वाला जो पॉइंट होता है वो पिन होगा, वो फर्स्ट पॉइंट पिन होगा। इसके बाद 8 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये 9 एंड देन 16 पिन। ओके, ठीक है। इस आईसी को हम लोग जो है 0 पीसीबी में लगाएंगे, जो आप देख रहे हैं ये रहा 0 पीसीबी, राइट। अगर हम डायरेक्ट इसको आईसी को 0 पीसीबी में हम ऐसे इंसर्ट करके हम इधर से सोल्डरिंग करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि सोल्डरिंग आयरन चूंकि गर्म होता है तो ये इसको हीट करेगा, इस पिन को, ये आईसी के पिंस को हीट करेगा और इसके वजह से इसको ये डैमेज हो सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक आईसी बेस होता है, राइट। ये आईसी बेस है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस आईसी बेस को ये 0 पीसीबी में हम ऐसे लगाएंगे, राइट। इसके बाद हम इधर से सोल्डरिंग करेंगे इस 0 पीसीबी को 0 पीसीबी पर, ठीक है। जब ये हो जाएगा, ये सोल्डरिंग हो जाएगा, इसके बाद अब जाकर के हम लोग ये आईसी को इस पे अटैच करेंगे, ठीक, ऐसे होता है। नेक्स्ट वी रिक्वायर 2 मोटर व्हील्स, जो कि ये गियर मोटर में यूज होंगे, लगेंगे। एक कैस्टर व्हील है, राइट, देयर इज ए कैस्टर व्हील। हम इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। यू कैन सी दैट ये कैसे भी मूव हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है, राइट। देन 9 वोल्ट बैटरी का एंड कनेक्टिंग वायर्स, एंड लास्ट ये कार्डबोर्ड है जिस पे हम लोग लाइन फॉलो रोबोट बनाएंगे, ठीक है। ओके, सो पॉज करिए तो। अब हम जानेंगे कि सर्किट डायग्राम इसका कैसे वर्क करता है, और ठीक है। ओके, ये रहा हमारे पास आईसी, ठीक, 16 पिन आईसी है। इसमें जो है कंसीडर करिए, मान लीजिए ये आईआर सेंसर मॉड्यूल पहला, ये दूसरा, ठीक है। अगर ये फर्स्ट इसको मान रहे हैं तो ये फर्स्ट मोटर हो गया, फर्स्ट मोटर, एंड दिस वन इज सेकेंड मोटर। ये रहा हमारा आईसी, राइट। ओके, तो इसमें क्या है, इसका आउटपुट, ये फर्स्ट आईआर सेंसर मॉड्यूल का आउटपुट हम पहले पिन में देंगे, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं फर्स्ट आईआर सेंसर आउटपुट, ठीक है। उसी तरह सेकेंड आउटपुट इसका कहां देंगे हम लोग, सेकेंड पिन में, राइट। पिन नंबर 8, ये जो भी हमारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जैसे कि आपका आईआर सेंसर 1 है, आईआर सेंसर 2 है, एंड द बैटरी, ये तीनों का टर्मिनल जो है नेगेटिव टर्मिनल 8 पॉइंट से कनेक्ट होगा। आ जाते हैं 9 पिन पे। 9 पिन पे है पॉजिटिव ऑफ द, ये आईआर सेंसर पे जो पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी बैटरी की, वो हम लोग यहाँ पे 9 पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। उसी तरह आईआर सेंसर 1, देन सेंसर 2, देन पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, राइट। देन इसके बाद जो है हम क्या देखेंगे, यहां पे 15 पॉइंट पे मोटर 1 का कनेक्शन देंगे। मोटर 1 हम लोग का ये है जैसे कि, ठीक है। 16 पॉइंट पे मोटर 2 का कनेक्शन देंगे, ये रहा इस पे, ठीक है। हमें पता है कि मोटर में 2 टर्मिनल होते हैं, तो एक टर्मिनल हम लोग यहां पे दे देंगे और दूसरा टर्मिनल हम लोग पॉजिटिव, ये जो 9th पॉइंट है, 9th पिन है, वहां पे हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल दोनों मोटर्स का देंगे। क्लियर है? तो इस तरह से कनेक्शन करते हैं हम लोग, और जब कनेक्शन ये हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा लाइन फ्लो रोबोट, इसको हम लोग अब ऑपरेट करते हैं, राइट।
ओके, सो ये रहा हमारा लाइन फॉलोअर रोबोट, ठीक है। सो लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। आप देख सकते हैं ये प्री डिफाइंड पाथ है, इसी के थ्रू ये फॉरवर्ड मूव होता है, राइट। So this is all about the line follower robot. This is a simple project which is required zero programming. This is simple IC based project, and this is the basic project which can be prepared simply, and we can also based on this logic we can also make a edge detector. Let us come back to this line flow robot. इस प्रोजेक्ट में हम लोग करते क्या है, बस छोटा सा मॉडिफिकेशन करेंगे हम लोग इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, एज डिटेक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक पॉइंट को, किसी भी आईआर सेंसर एक मॉड्यूल को हम लोग थोड़ा सा उसका जो पोजीशन है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, यहां पे कर देंगे, राइट। और ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही कोई एज, मान लीजिए ये वाला पोजीशन इसका आगे है, यहाँ पे है, तो जैसे ही ये पोजीशन, ये आईआर सेंसर यहाँ पे आएगा, नीचे क्या दिखेगा, नीचे कुछ भी नहीं है, राइट। जब कुछ भी नहीं दिखेगा तो ये ऑटोमेटिकली ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बट उस केस में ये रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि अभी भी ये सरफेस पे है, राइट, मतलब कि सरफेस के जस्ट ऊपर है, ठीक है। अभी ये सेंस कर रहा है, लेकिन ये सेंस क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका पोजीशन चूंकि यहाँ पे है, आगे है, तो इसलिए सेंस नहीं कर पा रहा है। तो ये इसे एसोसिएटेड जो मोटर लगा हुआ है, ठीक है, वो बंद हो जाएगा, ठीक। और ये चूंकि ये काम कर रहा है, ये मोटर मूव करेगा तो ऑब्वियसली ये इस तरह से मूव हो जाएगा, ठीक है। अब ये सीधे ऐसे जाएंगे, सेम पोजीशन यहां भी आएगा, ये वाला जो मोटर, ये वाला जो आईआर सेंसर है, ये फिर से अगेन सेंस नहीं करेगा, ठीक। तो सेंस नहीं करेगा तो ये मोटर चलेगा नहीं, ठीक है ना। और फिर क्या करेगा, ये ऐसे, ये बस सिंपल सा सेम लाइन फ्लो रोबोट है, इसको बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर हम कर दें तो ये एज डिटेक्टर की तरह भी वर्क करेगा। उस कंडीशन में एज डिटेक्टर के लिए हमें ऐसे प्री डिफाइंड पाथ की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।